सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ PSSB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਲਰਕ ਵਰਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ PYQ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ PYQ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਵਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ PYQs ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸ ਟਾਈਮਸ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ, ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂ PYQ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾ। सो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चे पहला क्वेश्चन अपना ये है द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स एज स्कैड्यूल रिस्पैक्टिवली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि अपने ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਟੀਕਲ 395 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੈਡਿਊਲ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟੋਟਲ 450 आर्टिकल्स ते 12 स्कैड्यूल है, ठीक है। ऑप्शन सी 450 आर्टिकल्स ते 12 स्कैड्यूल है। उस तो बाद सेकंड क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हां विचों किहड़ा आर्टिकल है जिहड़ा एनुअल फाइनेंशियल मतलब कि वित्तीय विवरण दे नाल डील करदा है। आर्टिकल्स वाधू सारे ने है ना 450 प्लस आ, पर जिन्हां चों कुछ मेन है जिवें हुण इह इहदे विच है 112 आर्टिकल है। 112 आर्टिकल ये कहता है कि मतलब जिन्ना भी वित्तीय विवरण जिन्ना भी पैसे का लेन देन होगा इंडिया का, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 112 डील करूगा। असैंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पहला क्वेश्चन हैगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज फ्रेम्ड, मतलब कि भारत का संविधान किस द्वारा बनाया गया सी। सो इहदे विच यह दसना है कि ब्रिटिश मोनार्की ने बनाया सी, ब्रिटिश पार्लीमेंट ने बनाया सी, इंडियन पार्लीमेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं सी उस टाइम ते कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी सी, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाया सी। फिर उस तो बाद द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया। सो उस टाइम ते चेयरमैन कौन सी इंडिया दे, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे इंडिया दी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी सी। देखो एक दिन ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जिस दिन मतलब मीटिंग हुई सी दिसंबर 9 ਨੂੰ, उस दिन ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਓਲਡ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ परमानेंट चेयरमैन कौन बने सी? राजेंद्र प्रसाद बने सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक? इंडिया रिपब्लिक कदों होया सी? सो इंडिया बिकम रिपब्लिक सब नूं पता होना चाहिए। रिपब्लिक डे आपां मनाउने 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ, ठीक है। फिर उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय किन्ना द्वारा अडॉप्ट किया गया सीगा, मतलब कदों अडॉप्ट किया गया सी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कदों किया गया सी, कदों बनाया सी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी ਨੂੰ। ਆਪਾਂ रिपब्लिक होई सी 26 जनवरी 1950 पर अडैप्ट कदों कर लिया सी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी ਨੂੰ। Who was the advisor of the drafting committee of constitution assembly? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਿਆ PSSB ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਦਾ, मतलब ਰਫ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਫਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ? BN ਰਾਓ ਸੀ, BN ਰਾਓ, ऑप्शन B BN ਰਾਓ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ? ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ मतलब ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਡੈਪਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, मतलब ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਡੋਪਟ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਈਸਵੀ। द ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन? किने लिखा सी, मतलब हैंड रिटन किंदा सी, ओरिजिन किंदा सी, पर द मूल संविधान किस द्वारा हथ लिखित है, ठीक है। तो यह हैगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हथ नाल लिखा सी, ठीक है।
फिर उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली एंड प्रेजिडेंट्स। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਸਾਰੀ असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ कमेटी सी है ना, कमेटी बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी, वाधू सारी कमेटीज बनिया। फिर उन्होंने हौली हौली करके डिवाइड करना शुरू करता कि जिमें किसी को एजुकेशन चली गई, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री चली गई, इस तरह है ना। तो फिर उस तो बाद उन्होंने हैड भी बनाए गए। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने विचों किहड़ी आ कि जे मैं थोनू नाल एक इमेज भी मतलब लगा दूंगी जिंदे विच ये होगा कि किहड़े हैड सी किहड़ी कमेटी दे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि एडवाइजरी कमेटी JB कृपलानी। JB कृपलानी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब एक एडवाइजरी कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ऑल। Okay, next question is Constituent Assembly of the India was set up under the cabinet mission plan in which year? किस ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। The next question is ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ constitutional amendment। ਹੁਣ amendments ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੰਨੀ ਆ। 42nd amendment ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मतलब उन्होंने वैसे तो बहुत कुछ कहा जाता है पर एक होर वर्ड है, चल तुहानू जिन्ने नाम पता तुसीं दस सकते हो। 42nd amendment ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नू की कहा जाता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स आ स्पैशल मेजोरिटी इन पार्लीमेंट। इन्हां विचों किहड़ी मतलब किहड़ी ऐसी प्रोविजन है जिंदे लई स्पैशल मेजोरिटी चाहिए? हेठ लिखियां विचों किस प्रावधान लई संसद दे विच विशेष बहुमत की लोड़ है? किहड़ा प्रावधान हुंदा? देखो कुछ भी हो जाए फंडामेंटल राइट्स ते अगे कुछ नहीं है, ठीक है। इनका आंसर भी फंडामेंटल राइट्स है कि जो तुम फंडामेंटल राइट्स कोई चेंज करना है ना तो उनके थोड़ा स्पैशल मेजोरिटी चाहिए है। स्पैशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ वोटिंग प्लस प्रेजेंट वाला ना, प्रेजेंट प्लस वोटिंग वाला। सो स्पैशल मेजोरिटी चाहिए है। नैक्सट इज विच आर्टिकल, जो थोड़ा स्पीड थोड़ी तेज लगे तो मैं दस सकते हो, आप हौली कर लेंगे, बाकी तो अगे पेज है तुम सॉल्व कर सकते हो, मैं ताई मार्क नहीं कर रही। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज प्रोवाइड द पार्लीमेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? किहड़ा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट की पावर दिंदा, अमेंडीकरण नूं कह दिंदा है ना? 368 वाधू वाली ये क्वेश्चन है। 368 रट लो, 368 मतलब 368, ठीक है। 368 अगेन एंड अगेन 368। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द पार्लियामेंट टू पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मतलब पावर ही है ऑब्वियसली, कॉन्स्टिट्यूशनल छेड़खानी मतलब थोड़ा बहुत चेंज भी करना। 368, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज क्वेश्चन विजिबल है ना, एज ऑफ द December 2014 the number of the amendment to the constitution of India since it was first enacted in 1950। ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? 99। उस टाइम तो 99 से उन्होंने पूरी काउंट टोटल किन्नी मतलब किन्नी बारी शोध हो चुकी सी? 99 से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज विजिबल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लीमेंट सैपरेटली बाय स्पैशल मेजोरिटी? कहते हेठ लिखिया विचों किहड़ा बिल है भारतीय संसद, लो जी, हेठ लिखिया विचों किहड़ा बिल है जो कि हरेक सदन द्वारा वक्रे तौर पर विशेष बहुमत नाल पास किया जाता है? ऐसा किहड़ा बिल है जिहड़ा कि दोवें संसद तो पास होगा? जिवें आपां देखिया कि 2/3 स्पैशल मेजोरिटी चाहिए है ना फंडामेंटल राइट नूं चेंज करने लई, उवें ही कॉन्स्टिट्यूशन नूं अमेंड करने लई दोवें सदनां विच आपां नूं खतरनाक वाली मेजोरिटी चाहिए है कि हाँ इन्ने तो बाद ही हो सकता, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो इनका आर्टिकल किहड़ा सी? 368। ओके, नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पार्लियामेंट टू पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन 368। चलो नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हुण कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन द सिस्टम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज वॉज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल इन विच ईयर? मतलब जिहड़ा ये सिविल सर्विसेज वाला पूरा डिपार्टमेंट है ना सिस्टम कदों अडैप्ट किया गया सी? 1853 दे विच, ठीक है, 1853 दे विच। ओके, नेक्स्ट हू वाज गिवन द टाइटल ऑफ द वाइसरॉय? वाइसरॉय दा टाइटल किहनूं दित्ता जांदा? गवर्नर जनरल नूं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नूं वाइसरॉय दा टाइटल। हुण वाइसरॉय किहड़े हुंदे आ? जिन्हां हिस्ट्री पढ़ रखी उन्हां तो बहुत छेती क्लीयर हो गया हुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी खासी थ्योरी है, तुम इन्हें पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फिर तुम कमेंट्स से आंसर देना है कि इनका सही ऑप्शन केड़ी है, ठीक है। ओके,
द नैक्सट क्वेश्चन इत्थे तक है वो क्वेश्चन, तुसीं फिर तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। नैक्सट आ गए DPSPs। हम DPSPs बारे जिन्हें पॉलिटी पढ़ रखे होने, DPSP तो बहुत चंगी तरह पढ़ रखे होने, है ना। सो DPSP से which part of the Indian Constitution deals with the directive principle? केड़ा पार्ट ऐसा है जिहड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाल गल करदा, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ते काम करदा पिया, है ना। उन ऐसा केड़ा पार्ट है? फोर्थ, सीधी जी गल, फोर्थ पार्ट है जिहड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाल डील करदा, ठीक है। DPSPs, okay. In the Constitution of India, promotion of the international peace and security is included in the मतलब international peace ते security कादे विच डील हुंदी आ, वो कीती जांदी DPSPs दे विच, ठीक है। सो जो DPSPs आ वो नॉन जस्टिसेबल आ, ठीक है। DPSPs का केस ऐदा है कि जो DPSP है ना, जिवें फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट नाल कोई तुहाडे छेड़खानी करदा, तुहानूं तुहाडे फंडामेंटल राइट नहीं दिंदा, तुसीं डायरैक्टली सुप्रीम कोर्ट च अपील कर सकते हो। होर ऐसा कोई केस नहीं है जिंदे तुसीं सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट दे मत्थे वज्जो कि हाँ भी साडा केस डील करो। बट फंडामेंटल राइट्स जिवें कि जस्टिसेबल है ना, ते उहदे लई तुसीं सीधा जा सकदे हो। पर DPSPs नॉन जस्टिसेबल हैगे आ, बहुत अच्छी चीज़ां इहदे च, है ना। लेकिन फिर भी तुसीं इहनूं लैके सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोई धक्का नहीं कर सकता तुहानूं इन्हां नूं लैके। ते फोर्थ पार्ट विच है ये, ठीक है। इन विच हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। DPSP से होंदी है। विच इज़ द ओनली स्टेट इंडिया हैव द कॉमन सिविल कोड। अच्छा, कॉमन सिविल कोड केड़ी कोई इकलौती स्टेट है जिंदे कॉमन सिविल कोड है, वो है गोवा, ठीक है। कॉमन सिविल कोड अपना। फिर उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपफुली इट्स विजिबल। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया promotion of the international peace and security is again DPSPs, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आर गिवन इन द फोर्थ पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उस तो बाद सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। नाल लिख लो, आर्टिकल नंबर 50 हुंदा है सेपरेशन, ठीक है। तो ये कौन डील करता है? DPSPs अगैन। Which of the following article of the Indian Constitution declares it primary duty of the state to raise the level of the nutrition and standard living of its and it is improvement of the public health? केड़ा आर्टिकल डील करना है ना? 47। आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि मतलब थोनू मतलब भारत के संविधान विच इन्हां विचों केड़ा ऐसा अनुच्छेद ऐलान करता है कि अपने पोषण के पद्धर ते जीवन के पद्धर नूं उच्चा चुकन ते जनतक सेहत सुधार करना राज का मुंडला फर्ज है। आर्टिकल 47, ठीक है। आर्टिकल 39A DPSP स्टेट की करता हो टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस, टू प्रमोट द फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। 39A, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ द प्रिंसिपल, एक बार क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ द प्रिंसिपल अंडर DPSPs, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इन्हां विचों केड़ा देखो, गांधीयन हुंदा है, सोशलिस्ट हुंदा है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आ गया अपने को लिबरल हुंदा है, केड़ा नहीं है? फ्रीडम। तीन ही चीज़ां आउंदियां, गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल। केड़ा नहीं आउंदा? वो है फ्रीडम। फ्रीडम प्रिंसिपल नहीं हुंदा, फ्रीडम प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब इन्हां विचों केड़ा ऐसा है कि DPSPs दे विच नहीं आउंदा, ठीक है। हुण देखो जिवें आपां पढ़िआ है ते वो भी गांधीयन प्रिंसिपल की गल होई है। गांधीयन है, सोशलिस्ट है, लिबरल है ना। हुण पहली गल तो तुसीं एक एक पॉइंटर में पढ़ो तो तुहानूं पता लगूगा कि क्या डिफरेंस है ना, मतलब क्यों क्या गया कि बाहर आ पढ़न तो ही पता लग जूगा। कॉमन जी गल है टू रीऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, मतलब देखो हुण गांधी ना उन्होंने तो गांधी जी के की रूल से उन्होंने तो क्या सी कि हाँ विलेज पंचायत एंड ऑल प्रमोट करना चाहिए, उन्होंने रीऑर्गेनाइज क्यों करूँ, मतलब ओबवियसली बिल्कुल ओपोजिट गल होगी। मतलब पढ़े हो ना पढ़े हो, जो तुसीं ध्यान नाल पढ़ोगे तो तुहानूं समझ आ जाएगी, ये तो बिल्कुल ओपोजिट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस वन, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल या मैंडेटरी। मैं पहला भी तुहानूं दस्सिआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। ओके, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एज अप टू, केड़ी एज तक कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग केड़ी एज है, तुसीं कमेंट्स से दसो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, द टर्म इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल पे इक्वल वर्क केड़ी टर्म आ, मतलब कौन इनू डिफाइन करता है? सो ए भी DPSP के अंडर आती है, ठीक है। इक्वल पे इक्वल वर्क, सॉरी यार पानी पी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, इन्हां विचों केड़ा है जिहड़ा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब डायरेक्टिव
DPSPs ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ DPSP ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਸ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਓਕੇ, ਦ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫਰੋਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਆਰਟੀਕਲ 50, ਠੀਕ ਹੈ। DPSPs ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਿਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਵਾੜਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਨੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 50। Next, Election Commission. According to the Election Commission of India, in order to reorganize as a national party, a political party must be treated as, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਕੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਨ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ 2 states, ਮਤਲਬ 2 states ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ 3 states, 4 ਜਾਂ 5, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 states, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 states। ਓਕੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ